Question number 7. Prove that minimum of z occurs at more than 2 points. So here we have to minimize and maximize, है ना, both minimize and maximize our z. Our objective function is z, which is given as 5x plus 10y, है ना. 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से ही आने वाला है. आज का जो लेक्चर है उसमें जो 4 सम करेंगे उसमें से एक सम आपकी बोर्ड के एग्जाम में होगा. So maximize z 5x plus 10y and subject to constraints are given. Subject to constraints are x plus 2y less than or equal to 120. First one. Second one is x plus y greater than or equal to 60. And third one, x minus 2y greater than or equal to 0. And non-negative constraints are also given, है ना. ये तो दिए होंगे x y greater than equal to 0. That means x and y both are greater than equal to 0. That is our non-negative constraints. Subject to constraints are these three. Done. Same method. बोलो क्या करना होता है. First we have to draw the graph by considering these inequalities as a equation. Equation consider करके इसका graph draw करेंगे. So first inequality is x plus 2y less than or equal to 120. So our equation will be x plus 2y equal to 120. Now we have to draw coordinate box. Coordinate box will be like this. Done. Different values of x and y. So for this one, है ना, वैल्यू बड़ी है तो क्या करेंगे, x इक्वल टू, सपोज इफ यू आर टेकिंग x इक्वल टू 30 ले लो, 90, 45. So if you are taking x equal to 30, corresponding value of y will be 45, and x equal to 40, corresponding value of y will be 40. Done. This is our first inequation. Second one, x plus y equal to 60. Done. Equal to 60 लेके करेंगे. So again coordinate box. So here if you are taking x equal to 30, corresponding value of y will be 30. If we take y equal to 20 or x equal to 40. Done. Third one, x equal to 2y, है ना, x equal to 2y, or we can say x minus y equal to 0. x minus 2y equal to 0. Third equation होगा, we'll get third straight line, graph of this inequality. These are the linear inequalities. So for linear inequality, we'll get one linear equation, and if we draw the graph of this linear equation, it will be a straight line. Done. 0 0 ले लो तो y will be 0, origins पे पास होगी. If you take x equal to 10, y will be 5. Done. Now graph, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना. आपको ग्राफ पेपर में ग्राफ ड्रॉ करना है, मैं ये रफ पेपर में कर रहा हूँ. These are the x-axis and y-axis, combinedly known as coordinate axis. Now देखो यहाँ पर वैल्यू सारी है 30, 40, 50, है ना. 10 10 का ले ले, या फिर 5 5 का करेंगे तो भी चलेगा. 5 10, चलो 5 5 का करते हैं. 5 10 15 20 25 30 35 40 45.
डन। स्केल 5 का लिया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। दिस इज द ओरिजिन, है ना। ओ नाउ फर्स्ट फर्स्ट ग्राफ x30 y45, x30 y45 समवेयर ओवर हियर, है ना। जैसे इंस्टाग्राम में आप लिखते हो ना, समवेयर ऑन अर्थ, समवेयर बिलो स्काई, वैसे समवेयर ओवर हियर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया 30-45, बाद में इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट 40-40, x40 y40, x40 y40 कहाँ पर होगा, समवेयर ओवर हियर। डन। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये कुछ ऊपर से जाएगा, ये रफली आने वाला है कुछ, आपका ग्राफ पेपर में अच्छी तरह से आएगा। डन। ये हो गया ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन कौन सा, x प्लस 2y इक्वल टू 120। नाउ दूसरा इक्वेशन x30 y30, x30 x30 y30 somewhere here, x30 y30 and x40 y20 यहाँ पर होगा। डन। ये दोनों पॉइंट इसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसे होगा। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, है ना, ऊपर जाके कुछ इंटरसेक्ट करेगा। स्केल छोटा ले लिया हमने। इसका ग्राफ होगा, कौन सी लाइन का है, x प्लस वाई इक्वल टू 60। थर्ड ग्राफ, थर्ड वन x00, ये ओरिजिन में से पास हो रहा है, x10 y5, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, है ना। अलग कलर अलग कलर, ये जाएगा यहाँ से। डन। दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन x minus 2y equal to 0. Three lines are there. Now you have to find the feasible region. Feasible region is the region in which our solution lies. So here consider the given inequalities. We will consider the origin for these two inequalities. So put the value of origin over here, 0 0. So 0 less than or equal to 120. बोलो क्या होता है, true or false? True, है ना, this one is true. So solution region of this first graph is towards the origin. इसका solution होगा origin के towards, है ना। एक लाइन ड्रॉ करेंगे प्लेन में, so that line will divide our plane into two half planes. So solution region of this line will be towards the origin, half plane. Solution region of this straight line will be the half plane, that half plane towards the origin, है ना। ये अंदर की साइड आएगा, ये पिंक लाइन का। सेकेंड लाइन x plus y greater than equal to 0, consider 0 0 origin, so it's 0 plus 0 greater than or equal to 60, तो ये फॉल्स आ गया, है ना, ये गलत बात है। दैट मीन्स द सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस, कौन सा कलर है, ग्रीन कलर, द सॉल्यूशन रीजन ऑफ दिस लाइन विल बी द हाफ प्लेन अवे फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। पिंक लाइन का टुवर्ड्स द ओरिजिन है, इसका अवे द ओरिजिन है, तो इसका सॉल्यूशन होगा अवे। देखो ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, अभी ये लाइन का कंसिडर करें, है ना, अभी इतना आ रहा है, अभी ये लाइन का या फिर इस साइड का होगा या फिर इस साइड का होगा। डन। नाउ दिस लाइन इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, सो वी हैव टू कंसिडर वन पॉइंट एक्सेप्ट दिस ओरिजिन। तो सपोज ये वाला एक पॉइंट ले ले, है ना, ये साइड में, ये साइड में एक ले ले, तो ये हो गया कौन सा पॉइंट, और 20 0। इसके लिए चेक करते ये, है ना, तो 20 माइनस 2 इंटू 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस वन इज 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस वन इज ट्रू। तो इसका सॉल्यूशन रीजन ये हाफ प्लेन या फिर ये हाफ प्लेन हो सकता है, लेकिन ये हाफ प्लेन, ये जो पॉइंट है इसके लिए इनइक्वालिटी ट्रू प्रूव हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा हाफ प्लेन होगा, ये वाला नहीं होगा। तो तीनों का कंबाइन कौन सा आ रहा है, देखो, इसका नीचे, इसका ऊपर और इसका राइट डायरेक्शन में, तो ये सॉल्यूशन रीजन आ रहा है सब। डन। so this is our feasible region, feasible region। लेकिन feasible region में यहाँ पर अभी इंटरसेक्शन पॉइंट हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, ये दोनों लाइन का।
कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करना पड़ेगा, है ना। ये स्केल छोटा ले लिया है, तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन से मिलेंगे? ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो ये लाइन x को इंटरसेक्ट करेगी तो y 0, तो x मिलेगा 60, है ना। ये इंटरसेक्ट करेगी अगर, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना हमारा कॉर्नर पॉइंट, वो एक कॉर्नर पॉइंट आएगा 60 0। ये लाइन जाके इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा, y0 तो x इक्वल टू 120, तो दूसरा एक कॉर्नर पॉइंट मिलेगा 120 0। क्लियर हो रहा है ये, है ना। मैं इसका इंटरसेक्शन x के साथ फाइंड कर रहा हूँ, तो आगे जाके आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये फिजिबल रीजन यहाँ से बाहर आ रहा है, क्योंकि हमने स्केल छोटा ले लिया है। आपको 10 लेके ड्रॉ करना है। डन। तो एक एक होगा 60 0, एक होगा 120 0, ये दोनों हो गए, और यहाँ पर ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। डन। सो टोटल वी आर गेटिंग 4 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये दोनों का निकालते हैं बाय सोल्विंग दिस टू लाइन्स, है ना। सो फर्स्ट वन इज x minus 2y equal to 0, and second line is x plus y equal to 60। साइन चेंज करो, ये कट हो जाएगा, y इक्वल टू 20 और x कितना आएगा 40, x इक्वल टू 40। डन। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, इसको सपोज a बोल दे, तो एक a होगा हमारा 40 20, है ना। ये दो निकाल दिए, तो b होगा 60 0, c भी निकाल दिया 120 0। अभी ये d निकालना है। बोलो और सीधा d क्या निकाला, ये दोनों का इंटरसेक्शन 30। डन। so these are the four corner points done, and this is our bounded feasible region। ये कौन सा है, bounded feasible region, and four corner points are there। now we have to find the value of our objective function z for these corner points। so these are the corner points। now corresponding value of z will be, z equal to क्या दिया है 5x plus 10y। so find the values, put x equal to 40, y equal to 10, 5 4 जा 20, क्या होगा 20, 200 प्लस 200, ये हो गया 400, है ना। ये 40 20, ये 400 हो गया है। नाउ दिस पॉइंट 6 5 जा 30, ये 300 हो गया, ये 0। नाउ ये 12 5 जा 60, ये हो गया 600, और इसकी वैल्यू 300 एंड 300 अगेन 600। डन। सो हियर वी हैव टू प्रूव मिनिमम एंड मैक्सिमम अकर्स एट 2 पॉइंट्स। तो देखो मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है, मैक्सिमम ऑफ z अकर्स एट दिस 2 पॉइंट्स। तो मैंने आपको थियरी लिखवाई थी, बोलो क्या स्टेटमेंट लिखवाया था, इफ यू आर गेटिंग मैक्सिमम ऑफ z एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो सी एंड डी, है ना, ए बी सी, ये जो लाइन है ना, यहाँ पर हमारा मैक्सिमम आ रहा है ये लाइन पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम z अकर्स एट द ऑल दी पॉइंट्स, है ना, ऑल दी पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट सी डी। सी डी जो लाइन सेगमेंट है ना, क्योंकि ये सी एंड डी के ऊपर मैक्सिमम आ रहा है, तो सी और डी के बीच में जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वो सारे हमारे क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। डन। सो मैक्सिमम ऑफ जेड इज 600 एंड दैट विल अकर एट ऑल दी पॉइंट्स बिटवीन सी एंड डी। सो मोर देन वन मैक्सिमम्स आर देयर, हो गया प्रूव। एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, 300। मिनिमम ऑफ जेड अकर्स एट पॉइंट बी, दैट मीन्स एट x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 0। डन। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर, है ना। आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, मोर देन वन मैक्सिमम अकर्स एट ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स सी एंड डी। क्योंकि सी पर भी मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, डी पर भी मैक्सिमम आ रहा है, और सी और डी के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, आप ग्राफ में देख लेना, ग्राफ पर से आप कोई भी एक पॉइंट ले लेना, और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, वैल्यू पुट करो, तो आपको मैक्सिमम में मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इज देयर क्लियर और नॉट? ओके चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। इसमें हम ग्राफ अच्छी तरह से करेंगे, ग्राफ में कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, स्केल छोटा या बड़ा देख के लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हियर
minimize and maximize. Minimize and maximize z. The value of z is x plus 2y. X plus 2y. And subject to constraints. Subject to constraints are x plus 2y greater than equal to 100. Second one, 2x minus y less than equal to 0. Third one, 2x plus y less than or equal to 200. Done. And non-negative constants, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 given. क्या करना है बोलो? जो अगले 7 क्वेश्चन और 4 एग्जाम्पल में किया ना वही. फर्स्ट, राइटिंग इक्वेशन x plus 2y equal to 100. Third one is 2x minus y equal to 0 and 2x plus y equal to 200. कोऑर्डिनेट बॉक्स बना के रखना है. x and y, different values of x and y. डन. तो पहले में बोलो हियर 100 का रहा है ना. टेक x इक्वल टू 20 ले लो. x इक्वल टू 20, सो y विल बी 40. हियर इफ x इक्वल टू डबल कर दो 40 है ना, तो 60 30, y will be 30. Done. Now for this one, 2x minus y equal to 0. So if you are taking x equal to 0, y will be 0, na, line passing from the origin. And x equal to 20 ले लो, x equal to 20, y will be 40. Now here 2x plus y equal to 200. For this line adjust करना पड़ेगा. If you are taking y equal to y 60 ले लो, so 140 by 2, ये 70 आ जाएगा. And if we take 60, ये y 80 ले लो, so 120 by 2, ये 60 आ जाएगा. Done. So these are the coordinate box. Now we'll try to draw the graph. ग्राफ ड्रॉ करें. ये सब 10 20 20 40 आ रहा है, तो इसका स्केल अभी हमें पता चल गया. क्या लेना है? 10 है ना. 10 का स्केल लेके ग्राफ ड्रॉ करेंगे. These are the coordinate axes. Origin 10 20 30 40 50 60 70 80. x 80 तक जा रहा है? नहीं जा रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90. Done. This is our y-axis, this is our x-axis. Now we have to draw the graph. ग्राफ सिंपल देखो. फर्स्ट ग्राफ के लिए x20 y40, x20 y40 यहाँ पर आएगा, और x40 y30 यहाँ पर आएगा, है ना. तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो शायद ये 60 में से पास होगी. ये आप ग्राफ में देख लेना कहाँ से पास हो रही है. डन. This one is x plus 2y. This is the equation of x plus 2y equal to 100.
0 0 करके रखेंगे ना तो आपको ये सब पॉइंट मिल जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, ओरिजिन में पास हो गई 0 0, और दूसरा है 20 40 20 40। तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, 20 है ना, x 20 y 40, 20 40 यहाँ पर होगा, यहाँ पर। ये मैंने 10 40 ले लिया था ना, ये 20 40 लेना था। तो ये 20 40, हाँ यही था, यहीं से पास करवाना था। तो ये 20 40 है ना, ग्राफ में करते होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ये रफ में अच्छा नहीं आपको लगेगा। ये 20 40 लिया था हमने। चलो ये 20 40, so this one is 2x minus y equal to 0, है ना। और इसका 70 60, ये 70 70 60 यहाँ पर, 70 60 एंड 60 80 60 80 60 80, ये भी बाहर जा रहा है ये, और इसको एक्सटेंड करो और ये 60 80, इसमें 0 0 पुट करो। इफ x इक्वल टू 0 y विल बी 200, तो ये 200 पर जाएगा। एंड इफ वी टेक y 0, x विल बी 100, तो ये 100 पर यहाँ पर कुछ कट करेगा ना ये लाइन। तो ये आपको ग्राफ पेपर में अच्छे से होगी आपकी लाइन, ये ऐसे जाएगी। डन। और ये ऊपर जाएगा कहाँ पर, 200, यहाँ पर कुछ 200 जैसा आएगा, वहां पर कट करेगी। डन, ये हमें लाइंस मिल गई। नाउ सॉल्यूशन रीजन, पहले में तो ओरिजिन से चेक कर सकते हैं। तो 0 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, दिस वन इज फॉल्स। सो x प्लस 2y, इसका सॉल्यूशन रीजन कहाँ पर होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका सॉल्यूशन अपवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड का, ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन नहीं ले सकते, उसके अलावा दूसरा कोई पॉइंट ले ले, है ना। सपोज ये लिया 40 0, तो 40 0 यहाँ पर रखो, तो 80 लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स आ गया। तो इसका सॉल्यूशन रीजन ये साइड नहीं होगा, ये डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये डायरेक्शन में होगा। तो देखो, इसका ऊपर जा रहा है, इसका ऊपर आ रहा है, तो ये अभी कॉमन मिल रहा है। और इसका इसका चेक करना बाकी है, तो ये देख लेते हैं। थर्ड वन, ओरिजिन चेक करें। ओरिजिन 0 प्लस 0, है ना, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 200, तो ये ट्रू हो गया। तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, 2RC ओरिजिन। इसका ऊपर, इसका लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन, इसका डाउट वन डायरेक्शन। सॉल्यूशन रीजन क्या आएगा, दिस वन, this one, this is the solution region. Done. This is our solution region. Now we have to find the corner points. तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट इसका, है ना, x 0 रखो तो y कितना आएगा, x प्लस 2y। ये 0 50, देखो ये अच्छा है 0 50। ये हमारा था 20 40, है ना, ये फाइनल 20 40। और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा दो लाइन का। बोलो वर्षिता, क्या निकाला। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू लाइन, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। एडिशन करो, 4x 200, सो x विल बी 50, है ना, x 50, तो y 100 डन। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 50 100। और ये लाइन ऊपर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, तो वो पॉइंट मैंने आपको बोला वो कौन सा होगा, 0 200। तो टोटल 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे। डन, इज इट क्लियर। So now we have to find maximum and minimum value at the 4 corner points. 4 corner points कौन से है, 0 50, 20 40, 50 100 and 0 200, 0 200। डन। चलो, उसके लिए
जगह थी ये रही. So now we have to draw the table. Total 4 corner points are there. And value of z, our z is x plus 2y. So writing 4 corner points, है ना, ग्राफ में दिख रहे हैं आपको. Suppose this is a, this is b, this is c, and this one is d. So coordinates of point a are 0, 50, b 20, 40, 20, 40, c 50, 100, and d 0, 200. आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो ये सब दिखेगा. ये रफ में ड्रॉ करा हो तो ये सब कुछ नहीं दिख रहा है ना, ये हम सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं. तो ग्राफ में ही करना है. तो देखो एट द कॉर्नर पॉइंट 050 है ना, 050 पर क्या वैल्यू आ रही है, पुट y इक्वल टू 50, x इक्वल टू 0, so it's 100, this will be 100. Now x equal to 20, y equal to 40, 40 to the 80 plus 2, again 100, 50 and 200, 8, 50, 100, 50 and 100 point, it will be 250, and here it's a 400. Done. So here maximum, this is maximum value of z. So maximum z is 400 at x equal to 0 and y equal to 200. And minimum z occurs at 2 points, है ना. minimum value of z is 100 and that is occurs on the all the points, है ना, सिर्फ a और b के b a and b पर नहीं, all the points joining point a and point b, है ना. ए बी लाइन सेगमेंट पर जितने भी, है ना, ये पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, सारे पॉइंट्स आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ z देंगे. डन. सो मिनिमम ऑफ z occurs at all the points on the line segment joining these 2 points a and b, and minimum value of z is 100, maximum value of z is 400. So here minimum of z occurs at more than 1 points, वो आपको प्रूव करना था, है ना. बहुत सारे पॉइंट्स मिले, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ z विल बी देयर. तो ये था क्वेश्चन नंबर 8. क्लियर. चलो क्वेश्चन नंबर 9 कर देते हैं, 10 शायद नहीं होगा. हाँ वही करते हैं. अभी मैं ग्राफ पेपर ही लेके आऊंगा ना, ग्राफ पेपर में ही करेंगे. एक्सरसाइज 12.2 पूरी हम ग्राफ पेपर में करेंगे. ड्रॉ करना ही है तो क्यों ग्राफ पेपर में ना करें, है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 9. मिनिमाइज, सॉरी, मैक्सिमाइज z माइनस एक्स प्लस 2y, माइनस एक्स प्लस 2y, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स. ये सब आपको लिखना है ना, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ब्लू पेन से लिखना है. सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x प्लस y greater than or equal to 5, x plus 2y greater than equal to 6, and नॉन नेगेटिव कांस्टेंट y greater than equal to 0, है ना. ये देखो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स नॉर्मली 0 था, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ y greater than equal to 0 दिया है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही दिया है. सो नाउ बोलो क्या करेंगे. राइटिंग इक्वेशंस. सो फर्स्ट इक्वेशन इज x equal to 3, सेकेंड इक्वेशन इज x plus y equal to 5, and third equation is x plus 2y equal to 6, है ना. x plus 2y equal to 6, x plus y equal to 5. चलो डन. कोऑर्डिनेट बॉक्स फटाफट. ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉक्स, x और y की वैल्यूज लिखनी है.
तो फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 3, तो ये तो इसमें तो कुछ नहीं है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कौन सी लाइन होती है, x कांस्टेंट है ना, वर्टिकल लाइन का इक्वेशन है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। चलो ये गया, वर्टिकल लाइन था, ये डायरेक्ट होगा है ना। नाउ यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 0, 0 0 लेते हैं, x 0 तो y 5 एंड y 0 तो x 5, डन। और ये x प्लस 2y इक्वल टू 6, यहाँ पर भी 0 0 ही कर देते हैं, x 0 y 3 y 0 x 6, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो हो भी गया। चलो अभी इसका ग्राफ सीधा मैं यहाँ पर ही ड्रॉ करता हूँ ना, हो जाएगा। पेज है नहीं ज़्यादा। हाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्केल 1 का ही लेते हैं, तो ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, done. Now what is x equal to 3? X equal to 3 is the equation of a vertical line, है ना, x equal to 3, तो x equal to 3 ड्रॉ कर देते हैं। ये रही हमारी x equal to 3। ये लाइन पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, तो उसका x कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो दिस इज x इक्वल टू 3, डन। उसके बाद दूसरी लाइन x 0 y 5 यहाँ पर एंड x 5 y 0 यहाँ पर, डन। इसको ज्वाइन कर दे। ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस 5 इक्वल टू 5। और दूसरी लाइन x 0 y 3 x 6 y 0, तो ऐसे कुछ होगी, डन। आ गई तीनों लाइन। दिस इज द ग्राफ ऑफ लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब इसका सॉल्यूशन रीजन निकाले। फर्स्ट यहाँ पर 0 0 पुट करो, है ना, ओरिजिन, तो ये 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये तो सरासर गलत बात है, फॉल्स। इसका सॉल्यूशन रीजन होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसका ये डायरेक्शन में आएगा, ये डायरेक्शन, डन। अभी ये लाइन x प्लस 5 सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 5, 0 कंसिडर करें, तो 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये भी फॉल्स। तो इसका सॉल्यूशन रीजन भी क्या होगा, ओरिजिन से अवे। तो देखो इसका इस साइड, इसका अपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कॉमन हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी ऑरेंज का चेक करते हैं, x प्लस 2y है ना, ओरिजिन डालो, तो 0 0 0 लेस देन और इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस, है ना, ये भी गलत हो गया, तो ये भी कहाँ जाएगा, ऑरेंज, अपर डायरेक्शन में, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो सॉल्यूशन रीजन क्या निकला, देखो इसका ये डायरेक्शन में, इसका ये डायरेक्शन में, इसका ये डायरेक्शन में, तो कॉमन रीजन ये दिख रहा है, देखो यहाँ से ये सब, है ना, ये लाइन का कहाँ पर आएगा, यहाँ से ये, और ये इसका अपर डायरेक्शन, तो यहाँ से ये, तो ये हमारा कॉमन रीजन हो गया, है ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से ऊपर, तो इतना आ गया। तो ये कौन सा रीजन है, अनबाउंडेड रीजन आ गया, अनबाउंडेड, दिस इज अनबाउंडेड रीजन, डन। नाउ फर्स्ट विल ट्राई टू फाइंड दी कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से मिले, देखो ये के मिला 1, ये दूसरा, और ये तीसरा, टोटल 3 कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर। सो x इक्वल टू 3 यहाँ पर पुट करो ये लाइन में, तो y क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3, सो y विल बी 2, डन। तो इसका कोऑर्डिनेट्स x3 y2 3 2, है ना, ये कॉर्नर पॉइंट 3 2, ये कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, ये कॉर्नर पॉइंट निकालो, x प्लस वाई, कहाँ लिखो यहाँ पर, x प्लस वाई, है ना, ये निकालना है, तो दोनों का सॉल्यूशन तो होगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा इक्वेशन x प्लस
2y इक्वल टू 6, माइनस 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 ये गया, ये माइनस वाई माइनस 1, वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4, तो ये हो गया 4,1। ये पॉइंट बी 4,1 डन। और ये तो आ गया था, ये 60 है ना, पॉइंट सी दैट इज 60। तो टोटल 3 कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर एंड आवर रीजन इज अनबाउंडेड रीजन। तो अनबाउंडेड रीजन के लिए मैंने एक थियरी लिखवाई थी, किसी को याद होगी शायद। मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज के लिए क्या करना है ना, मैक्सिमाइज करने के लिए आपको ये सिखाया था कि ए एक्स प्लस बी वाई मस्ट बी ग्रेटर देन एम, एम इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो कॉर्नर पॉइंट पर पहले निकाल देते हैं वैल्यू, 3 2 4 1 and 60 और z is minus x plus 2y। so minus 3 plus 4, minus 3 plus 4 क्या होगा 1। now 4 1 plus 4 minus 4 plus 2, so minus 2, minus 6 plus 0, so it's a minus 6 done। so here maximum value is 1, so here we have to consider one straight line, that is minus x plus 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपको ये लाइन लेनी है, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1, ये लाइन ड्रॉ करनी है। और ये लाइन का आपको जो हाफ प्लेन मिलेगा, वो हाफ प्लेन का कोई भी पॉइंट इसके अंदर कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 1, अदरवाइज z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। डन। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, माइनस एक्स प्लस 2y